यस सर। चलिए, है ना, सुनिएगा एक बार फिर से कि व्हाट हैपेंस, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस। ठीक, so in the pregnancy you can listen. After the implantation, the trophoblast develops finger like projections called as chorionic villi. ना क्या क्या बनते हैं? A finger like projections are being formed. These are called as chorionic villi. ठीक है, it's surrounded by uterus tissue and maternal blood. Then this blastocyst जो होता है, it gets surrounded by the uterus tissue and the maternal blood. मदर की बॉडी का जो ब्लड है उसके द्वारा, इसकी ब्लड वेसल से ये गिर जाता है। and it also surrounded by the uterus tissue. क्या होता है, यूटरस की जो दीवारें हैं होती है, यूटरस की टिश्यूज वो तेज गति से डिवाइड होने लगती हैं। ठीक है, एज द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, द cells of the uterus, they start dividing very rapidly. As a result, what happens, this blastocyst, now it get covered, it get embedded in the wall of this uterus. ठीक है, और ये जो पूरा जो है यूटरस की दीवार के अंदर ये घुस जाता है, घिर जाता है इसकी दीवार से, और साथ में इसके maternal blood vessels also they get attached with it. So this process is called as implantation takes place. ठीक है, then after that what happens, the chorionic villi, then what happens after implantation, the trophoblast it develops a finger like projections. ठीक है, इसके अंदर ट्रोपोब्लास्ट के अंदर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, which are called as chorionic villi. क्या कहते हैं इनको? chorionic villi. Then it gets surrounded by the uterus tissue and maternal blood. Then this chorionic villi, the chorionic villi and the uterus tissue, both of them, these together, they form a connection between the mother body and the embryo. This connection is called as placenta. क्या बनाते हैं? कोरियनिक विलाई और यूटेरस की जो सेल्स होती हैं वो मिलकर के आपस में बनाती हैं कनेक्शन मदर की बॉडी और एम्ब्रियो के बीच में। इस कनेक्शन को कहा जाता है प्लासेंटा। क्लियर? कोरियनिक विलाई एंड मैटरनल टिश्यू टुगेदर दे फॉर्म द प्लासेंटा। क्लियर? सो दिस प्लासेंटा, इसके क्या फंक्शन होते हैं ये देखेंगे हम। द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, the embryo it get connected to the placenta by an umbilical cord. इससे जुड़ा हुआ रहता है एक कॉर्ड इस प्लासेंटा को मदर की बॉडी और एम्ब्रियो से कनेक्ट करती है, जिसको कहते हैं umbilical cord. This placenta it facilitate the transport of oxygen and nutrient from the mother to the embryo. ठीक है, it also, this placenta it also remove the carbon dioxide and waste material फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर जो भी वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस सबको भी ये रिमूव करता है प्लासेंटा। दिस प्लासेंटा इट आल्सो एक्ट एज अ बैरियर फॉर नंबर ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, कोई भी जो है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस एम्ब्रियो के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ये जो है प्लासेंटा उसको यहीं बाहर रोक लेती है। ठीक है, इट आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। This placenta it also act as an endocrine gland and it produces several hormones. ना, इससे कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं इस प्लासेंटा से, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. These important hormones are also being formed by the placenta. कौन-कौन से? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, human placental lactogen, estrogen and progesterone hormones. So these are being formed by the placenta and this is the stage of placenta. Okay, clear to you? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। चलिए इसके आगे भी हम बढ़ते हैं कि what happens। तो ये जो हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, दिस हार्मोन जो है इनका दिस लेवल, the level of this hormone it increases in the pregnancy, है ना? Clear to you? This
लेवल बढ़ जाता है, इन चारों जो हार्मोन मैंने आपको बताया उनका लेवल इसमें बढ़ जाता है, और ये लेवल बढ़ने के कारण, दिस लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, ये हार्मोन जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं. This all these four hormone which have been secreted by this placenta, it maintains the pregnancy. ये सारों जो चारों हार्मोन से ये मिल करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं. Let to you, these all hormones are necessary for the maintenance of pregnancy, and the urine test is done to identify the presence of this ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. अगर ये हार्मोन यूरिन टेस्ट किया जाता है तो अगर ये हार्मोन निकलता है तो इसका मतलब है द प्रेगनेंसी इज बीइंग स्टार्टेड. ठीक है, क्लियर टू यू? क्लियर? सो टुडे आई विल स्टॉप माय क्लास हियर ओनली. यस सर. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, है ना? चलिए, आई विल स्टॉप माय क्लास हियर. यस सर. है ना? जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द अटेंडेंस, देन यू कैन लीव. ठीक है, लेट मी टेक द अटेंडेंस, देन यू कैन लीव. अभी कोई नहीं लीव करेगा, है ना बेटा? ठीक है, लेट मी टेक द इमेज ऑफ द अटेंडेंस, देन आई विल, ठीक है, देन आई विल लेट यू नो. ठीक है, ओके. चलिए, इसके आगे का हम जो है कल पढ़ेंगे. ओके, इसके आगे का हम जो है वो कल पढ़ेंगे.